ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ PSSS ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਡ ਵਰਡ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ऑफिशियस। ऑफिशियस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ऑफिशियस, ਜੋ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨੋਜ਼ੀਅਸ। ਨੋਜ਼ੀਅਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਨੋਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੋਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੋਮਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨੋਜ਼ੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਈਟਿਊਡ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ੀਕਲ। ਕੁਇਜ਼ੀਕਲ ਸੀਮਿੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਾਊਟ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਇਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੁਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਇਜ਼ੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕੁਆਈਟਿਊਡ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ QUIET। ਕੁਆਇਟ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਆਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, QUIETUDE, ਮਤਲਬ I ਔਰ E ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। correct spelling is quietude, which means a state of stillness, calmness and quiet in a person or place. quietude ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ state of stillness, calmness। quiet ਤੋਂ word ਬਣਿਆ ਹੈ calmness, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ calmness। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next question ਹੈ select the most appropriate meaning of the given idiom। idiom ਹੈ dry run। ठीक है। ड्राई रन जो है, वैसे मैं थोड़ा जिहा समझा दिंदी हाँ स्टार्ट करन तो पहला कि ड्राई रन का मतलब की हुंदा है। ड्राई का मतलब तुहानूं पता ही है सुखा होना, कोई चीज़ वैट ना होवे, ड्राई होवे, सुखी होवे। रन की हुंदा दौड़ना। ठीक है। तो किसी चीज़ नूं सुखा सुखा चला देना। ठीक है जी। चला किसी चीज़ नूं चलाना पर सुक्का सुक्का चला देना। इहनूं हुण आपां अगे चंगी तरीके नाल समझदे हाँ। अ पार्टी विदाउट ड्रिंक्स, एक इदां दी पार्टी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅ ਰਿਹਰਸਲ ਔਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਨ। ਡੂਇੰਗ ਅ ਫਰੂਟਲੈਸ ਟਾਸਕ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸਕੇਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਖਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਕੇਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ। ਡਰਾਈ ਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅ ਰਿਹਰਸਲ ਆਫ ਅ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਰੀਅਲ ਵਨ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨਾ। ठीक है जी। अ रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन नूं कहंदे आ ड्राई रन। ड्राई रन अ रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस और प्रोसीजर बिफोर द रियल वन। ठीक है। असली काम करन तो पहला जस्ट उहदी रिहर्सल कर लेना, उहनूं कहंदे आ ड्राई रन। मोस्ट एप्रोप्रीएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट एप्रोप्रीएट वर्ड की आऊगा इहदे विच जिहड़ा ब्लैंक है। अबाउट 1 लाख टैंपरेरी वर्कर्स इन द ऑटो component sector lost their jobs between October 2018 and July 2019 due to the dash in the auto industry। ਕਹਿੰਦੇ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਟੋ
वालिया ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी। ठीक है, अबाउट 1 लाख टैंपररी वर्करस ने अपनी जॉब जो लॉस्ट कर दी ड्यू टू द डैश इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री दे विच की आ गया सीगा, स्लंप आ गया सी। सर्ज, सर्ज हुंदा वधना, वध रही सी इंडस्ट्री तां करके उन्हां दी जॉब चली गई। बिलोइंग की हुंदा टू फिल विद एयर एंड मूव इन द विंड, किसी चीज़ नूं हवा दे नाल भर देना ते हवा दे नाल भर देना ते उन्नू हवा दे विच मूव करना। स्वैल, स्वैलिंग हो जानी, सुज जाना किसी चीज़ का। ठीक है जी, तो ये सर्ज हुंदा वधना। ठीक है, जे कोई वध रही इंडस्ट्री फिर तो ओबीअसली जॉब्स नहीं जाऊँगियाँ। बिलोइंग ये तो कोई होर ही चीज़ हो गई। स्वैल, स्वैलिंग, स्वैलिंग का कोई रोल नहीं है। स्लंप की हुंदा है जी, जेकर स्लंप हो जाए तो उन्ना की हुंदा है, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਲੰਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਲੰਪ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਗੋ ਅ ਸਡਨ ਸਵੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ। ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ मतलब बहुत लंबा जो चले, प्राइजिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है, की हुंदा है, प्राइज़ वैल्यू अमाउंट जे घट जाए स्लंप वो हुंदी है। प्राइज़ वैल्यू तो अमाउंट का घट जाना, उहदे करके की सी ऑटो इंडस्ट्री दे विच जॉब्स जो सीगियां कईयां दियां ओह चलियां गईयां स्लंप दे कारण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलैक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिता होया उहदा सिनोनियम लभो, उहदे वर्गा लभो। ठीक है जी, फस्ट है क्वर्क। क्वर्क का मतलब हुंदा है अजीब आदत या व्यवहार, किसी व्यक्ति की आदत बहुत अजीब होवे या अलग तरीके नाल व्यवहार करे। ठीक है, इहदा सिनोनियम की होवेगा। क्वेस्ट हुंदी किसी चीज़ की खोज करनी, लाइक द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनैस, हैप्पीनैस की खोज करनी। अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, किसी लिए एक लंबे समय तक किसी की सर्च करनी, क्वेस्ट करनी। ठीक है जी, स्कार्ज, स्कॉर्ज का मतलब है महाकष्ट ਜਾਂ विपत्ति का कारण। ठीक है, ਇਹਦੀ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ महाकष्ट ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਪत्ति ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ महाकष्ट का कारण सी, स्कॉर्ज सी यानी कि। ठीक है, स्कॉर्ज का की मतलब हो गया महाकष्ट या विपत्ति का कारण। क्वेस्ट हुंदा किसी चीज़ की खोज करना। सैल्यूटरी की है, हैविंग अ गुड इफैक्ट ऑन समबडी, किसी ते बहुत वधिया इफैक्ट पवे, हैविंग अ गुड इफैक्ट। सैल्यूटरी मतलब सैल्यूटरी इफैक्ट पैना, वधिया इफैक्ट पैना किसी ते किसी चीज़ का। तो एक है फॉइबल, अ माइनर वीकनेस और एसेंट्रिसिटी इन समवनस करैक्टर, किसी के करैक्टर दे विच माइनर जी वीकनेस होनी। ठीक है, वीकनेस थोड़ा अजीब व्यवहार होना किसी बंदे का। तो आपां की कीता सी पहला क्वर्क, क्वर्क का की मतलब सी अजीब आदत या अजीब व्यवहार। कोई बंदा तुहानूं लग रहा है कि थोड़ा अजीब तरीके नाल पेश आंदा है, अजीब व्यवहार करता है। तो उही फॉइबल का मतलब है माइनर वीकनेस किसी के करैक्टर दे विच होनी, थोड़ा अजीब तरीके का व्यवहार करना। तो इहदा सिनोनियम की हो गया क्वर्क का, क्वर्क का सिनोनियम हो गया फॉइबल, माइनर वीकनेस और एसेंट्रिसिटी इन समवनस करैक्टर। नैक्सट है, सिलैक्ट द वर्ड विद द करैक्ट स्पैलिंग। ये सानू कुछ एक स्पैलिंग्स दिते गए ने, राइट स्पैलिंग किहड़े ने। इन्होंने एक वर्ड दिता है जो है ट्यूमलचुअस, ट्यूमलचुअस, ट्यूमलचुअस एक वर्ड दिता है, उत्ते राइट स्पैलिंग किहड़े ने। इधर ट्यूमलचुअस दे विच डबल एम दिता है, रॉन्ग हो गया। डबल एल दिती है, रॉन्ग हो गया। ये भी डबल एल तो डबल एम दिती है, रॉन्ग। सानू चाहिए सिंगल एम तो सिंगल एल, ट्यूमलचुअस, ट्यूमलचुअस। ठीक है, ट्यूमलचुअस द राइट ऑप्शन इज सी, इज़ द राइट ऑप्शन। ट्यूमलचुअस इज़ द करेक्ट स्पैलिंग विच मीन्स मेकिंग एन अपरोर और लाउड कन्फ्यूज्ड नॉइस, मतलब लाउड नॉइस पैदा करनी, लाउड तो कन्फ्यूज्ड नॉइस पैदा करनी, उन्होंने की कहते हैं ट्यूमलचुअस। ट्यूमलचुअस का मतलब की है कन्फ्यूज्ड नॉइस, तुहानूं किसी जगह तो कन्फ्यूज नॉइस आ रही, आवाज़ आ रही है, उन्होंने कहा जाता है ट्यूमलचुअस। सिलैक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस।
ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਸੀਮ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ ਹੈਕਟਿਕ, ਹੈਕਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਕੈਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੈਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸ ਹੈਕਟਿਕ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਟੂ ਬੀ ਡਲ ਐਂਡ ਪੇਲ, ਡਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਲ ਇਨਟੂ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? pale into insignificance, diminish in importance, especially in comparison with something else। A is the correct choice, ठीक है। to seem less important, pale into insignificance, to seem less important, मतलब ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਕੈਟੇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਪੇਲਸ ਇਨਟੂ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਵੈਨ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੇਲ ਇਨਟੂ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਲ ਇਨਟੂ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੂ ਸੀਮ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ select the antonym of the given word moot। moot ਇੱਕ word ਹੈ, MOOT, moot। ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੈ? moot ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ moot ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਡਿਬੇਟ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਔਰ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਟ, ਓਕੇ। ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਨਕਲੂਡਡ ਤੇ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਡੂਬੀਅਸ, ਡਾਊਟਫੁਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟੇਬਲ, ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ, ਡੂਬੀਅਸ, ਡਾਊਟਫੁਲ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਕਲੂਡਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੂਟਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਆਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਨਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਮੂਟਡ ਐਟ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਸੀ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। Next है select the word which mean the same as the group। just punishment for wrong doing, punishment ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਂਡੀ, ਨਿਮਿਸਿਸ, ਪੈਰੋਡੀਗੀ, ਵੇਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਮਿਸਿਸ, punishment or defeat that is deserved and cannot be avoided। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਜੋ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਮੀਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਂਡੀ ਕੀ ਆ, ਅ ਮੈਨ ਅਨਡਿਊਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਲੁਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਜੋ ਹੈ
वो कंसर्नड है किहदे बारे कंसर्नड है कि उन्हें स्टाइलिश दिखना है तो फैशनेबल दिखना है, हो गया डैंडी। पैरोडी जी, अ यंग परसन विद एक्सैप्शनल क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, एक यंग जवान परसन जिहदी क्वालिटीज़ ते एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सैप्शनल होण, एक्सट्रा ऑर्डीनरी होण। वेगन, वेगन की हुंदा, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसीफाइड परपस, एक इदां दा व्हीकल जिन्हों यूज़ किया जाता है गुड्स नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते ले जाण लई, उहनूं कहा जाता वेगन। ओके जी, ठीक है। तो आपां गल कर रहे सी पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जो कोई गलत काम करदा उहनूं पनिशमेंट देनी, इहदा सिनोनियम की हो गया नेमेसिस। नेमेसिस दे विच आपां की गल कीती सी, पनिशमेंट और डिफीट दैट इज़ डिजर्वड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। इहदा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी नेमेसिस। ठीक है जी। बाकी डैंडी बंदा जो कि फैशनेबल होवे बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेगन की सीगा एक इदां दा व्हीकल जिन्हों ट्रांसपोर्ट गुड्स करन वास्ते यूज़ किया जाता होवे। पैरोडी की सीगा एक इदां दा बंदा जिहदे विच बहुत वधिया क्वालिटीज़ होण, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन द सेंटेंस गिवन आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। श्रेया स्टार्टेड गोइंग टू हर न्यू ऑफिस सिंस यैसटरडे, नो एरर। श्रेया ने और नवे ऑफिस जाना शुरू कर दिता यैसटरडे तो, ठीक है। हुण इधर जो है वर्ड सीन्स वो नहीं आएगा, ठीक है। सीन्स की जगह की आएगा फ्रॉम। श्रेया ने नवे ऑफिस जाना शुरू कर दिता फ्रॉम यैसटरडे, यैसटरडे तो उन्हें शुरू कर दिता, ठीक है जी। फ्रॉम यैसटरडे श्रेया स्टार्टेड गोइंग टू हर न्यू ऑफिस फ्रॉम यैसटरडे, यानी कि ऑप्शन सी साडा राइट आंसर है। ये ग्रामेटिकल एरर है सी दे विच, सीन्स यैसटरडे की जगह आऊगा फ्रॉम यैसटरडे। थोड़ी जी इनू पढ़ लेंदे हैं, ठीक है जी। सीन्स इज़ एक्टिंग एज अ प्रैपोजिशन हेयर, सीन्स इत्थे किहदा काम कर रहा है, प्रैपोजिशन का काम कर रहा है। बोथ सीन्स एंड फ्रॉम आर यूज्ड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, सीन्स नू भी पॉइंट ऑफ टाइम तो पहला यूज़ किया जाता है, फ्रॉम नू भी पॉइंट ऑफ टाइम तो पहला यूज़ किया जाता है। बट सीन्स इज़ प्रीसीडिड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस, सीन्स नू कित्थे लगाया जाता है, प्रीसीडिड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस। वाइल फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद एनी टेंस, फ्रॉम नू किसी भी टेंस के नाल लगाया जा सकता है, पर कहते सीन्स नू कित्थे लगाया जाता है, परफेक्ट टेंस दे विच, ठीक है जी। सो रिप्लेस सीन्स विद फ्रॉम टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट। ठीक है जी। कहते सीन्स कित्थे लगता है, उन्हें गल दसी है, सीन्स इज़ प्रोसीडिड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस की गल कर रहा है, पर कहता फ्रॉम किते भी लग सकता है, इधर की लगेगा फ्रॉम। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ब्रैकेट दे विच जिहड़ा पार्ट दिता गया उन्होंने इंप्रूव करो। आई शैल नॉट मेक सम रिजर्वेशन फॉर द मूवी विदाउट गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम एवरीवन, कहता मैं मूवी वास्ते कोई भी रिजर्वेशन नहीं करूँगा जब तक मैनू कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती सारियां दी। सम, ठीक है, कहता सम रिजर्वेशन नहीं करूँगा, तो इधर राइट जो वर्ड आना चाहिए इधर आना चाहिए कि एनी, मैं कोई भी रिजर्वेशन नहीं करूँगा। आई शैल नॉट मेक एनी रिजर्वेशन, मैं एक भी रिजर्वेशन नहीं करूँगा जब तक मैनू कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती कि किन्ने किन्ने जाना है। मच, मच क्या इधर मच आना चाहिए, आई शैल नॉट मेक मच रिजर्वेशन, एनी रिजर्वेशन, मैनी रिजर्वेशन, नो इम्प्रूवमेंट। तो एनी रिजर्वेशन, इधर मैं कोई भी रिजर्वेशन नहीं करूँगा, एनी रिजर्वेशन। कहते एनी नू कित्थे यूज़ किया जाता है, नैगेटिव और इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस दे विच, ठीक है जी। तो सम कित्थे यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी डिग्री इन अफर्मेटिव सेंटेंसिस दे विच। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज़ बीन सक्सैसफुल इन इंक्रीजिंग कवरेज एंड एक्सैस टू स्कूल एजुकेशन। कहते जो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है उदों तो की होया है, इनक्रीज़ इन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, मतलब बच्चे जो है कवरेज वध गई है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा दे विच बच्चे जान लग पे ने, स्कूल एजुकेशन तक जो पहुँच है बच्चों की वो बहुत वध गई है। बट देयर
नाउ देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू शिफ्ट द फोकस टू। ठीक है, कवरेज तो वध गई है, बहुत बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर हुण किस चीज़ की जरूरत है कि फोकस किते किया जाए। क्वांटिटी, बच्चों को ज़्यादा मात्रा दे विच पढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्वांटिटी वधा दी जाए, क्वालिटी वधा दी जाए पढ़ाई की, इक्वैलिटी वधा दी जाए पढ़ाई की, या प्रमोशनस वधा दी जाए पढ़ाई की, प्रमोशन की जाए। ठीक है जी, तो जरूरत है ये राइट आंसर आएगा होगा क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटी होंगी मात्रा वधानी, इक्वैलिटी का ये कोई रोल ही नहीं है, प्रमोशनस भी नहीं वधाणियां दी लोड़, जो है क्वालिटी वधाण की लोड़ है। बट नाउ देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू शिफ्ट द फोकस टू क्वालिटी, ऑप्शन बी। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड स्लर। स्लर दा सिनोनियम दसो। ठीक है, स्लर की हुंदा है बोलना। बोलना किद्दां, मान लो किसी व्यक्ति ने ड्रंक की हुई है, ड्रिंक की है, तो वो ड्रिंक करके बहुत अजीब तरीके नाल बोलदा, मतलब कुछ तुहानूं शब्द समझ लगदे आ ते कुछ नहीं भी लगदे उहदे शब्द समझ। ते मंबल, मंबल की हुंदा है, मंबल हुंदा है मूँह दे विच ही थोड़ा थोड़ा बोलना, हौली हौली मंबलिंग करनी, वो भी कदी कदी तुहानूं समझ लगदा है, माड़ा मोटा नहीं लगदा। स्लर दा सिनोनियम की हो गया, मंबल। अगला है एन्यूसीएट। एन्यूसीएट का मतलब हुंदा से और प्रनंस वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स क्लीयरली। एन्यूसीएट का मतलब है कि तुसी इस तरीके नाल शब्द बोल रहे हो, बिल्कुल क्लीयरली सुनाई दे रहे हैं, समझ आ रहा है। प्रेज हुंदा किसी की तारीफ करनी, अवॉइड हुंदा किसी नूं अवॉइड करना। ठीक है जी, तो स्लर दा राइट ये आंसर की हो गया, मंबल करना। स्लर का मतलब भी तुसी सही तरीके नाल नहीं बोल पा रहे, मंबल का भी वही मतलब है। ठीक है, स्लर स्पीक वर्ड्स इनडिस्टिंक्टली सो दैट द साउंड रन इनटू वन अनदर। तो मंबल से समथिंग क्वाइटली, हौली हौली बोलना। स्लर का की हो गया, मंबल करना। सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड इमीनेंट। इमीनेंट का मतलब ये दस्या गया है अबाउट टू हैपन, इंपेंडिंग, जो होने वाला होवे। अबाउट टू हैपन, कुछ इदा की चीज़ जो होने वाली होवे उन्होंने कहांगे आपां इमीनेंट। तो इनू इंपेंडिंग भी कहा जाता है, इंपेंडिंग तो इमीनेंट। ठीक है, तो उन्हें वर्ड दे ही दिता, सिनोनियम लभना है जी असी। ठीक है, इमीनेंट जो होने वाला होवे, इंपेंडिंग का की मतलब है, इंपेंडिंग भी वो चीज़ जो होने वाली होवे। रिमोट, रिमोट प्लेसिस हुंदे ने, दूर दराज दे प्लेसिस। डूबियस, दुविधा दे विच होना, श्योर ना होना, सर्टेन ना होना। तो बाकी अनलाइकली। ठीक है, तो यदा राइट आंसर की हो गया, इमीनेंट दा अबाउट टू हैपन, इंपेंडिंग जो होने वाला होवे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इमीनेंट दा सिनोनियम है इंपेंडिंग। स्पैलिंग, करैक्ट स्पैलिंग दसने ने। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट दे राइट स्पैलिंग की ने। ये कंप्लेसेंट एक वर्ड दिता गया है, दे राइट स्पैलिंग तुसी दसने ने किहड़े ने। ठीक है जी, कंप्लेसेंट इज़ द करैक्ट वर्ड विच मीन्स विलिंग टू प्लीज़ अदर्स और टू एक्सैप्ट वट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट। कंप्लेसेंट का मतलब देखो जी, प्लीसेंट हुंदा एक, प्लीसेंट। ठीक है, प्लीसेंट का की मतलब हुंदा है खुश करना। तो देखा जाए जोड़े पिछे वाले वर्ड ने वो प्लीसेंट तो ही बने हुए लगते पे ने, प्लेसेंट थोड़े जे चेंजिज आ गए ने। SANT सेंट सेम है, PLAI है। ठीक है, अगे कम लग गया है। कंप्लेसेंट का मतलब की दस रहा है कि मतलब इदा की इच्छा करनी कि विलिंग टू प्लीज़ अदर्स, दूसरों को खुश करने की इच्छा होनी, या फिर एक्सैप्ट करना, वो जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, बिना किसी प्रोटेस्ट किए हुए उन्होंने एक्सैप्ट करी जाना, उन्होंने कहांगे कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट की है, दूसरों को खुश करने की चाह होनी, इच्छा होनी, या फिर जो भी वो कर रहे हैं उन्होंने चुपचाप जो है विदाउट प्रोटेस्ट दे एक्सैप्ट कर लेना, कंप्लेसेंट। राइट स्पैलिंग हो गए COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। सेंट SANT PLAICOM। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। किक द बकेट, बकेट नूं लत्त मार देनी। लूज टेंपर, गुस्सा करना। डिले अ लिटल लॉन्गर, थोड़ा देर हो जाना। टू डाई, मर जाना। टू मीट विद एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है जी, तो ये किक द बकेट तुसीं याद कर लो, किक द बकेट का राइट आंसर है टू डाई। किक द बकेट का की, किक द बकेट का की राइट आंसर है टू डाई, ऑप्शन सी, टू डाई।
Improve the bracketed part of the sentence. Please play well lest you may lose the sport. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੇ ਵੈਲ ਲੈਸਟ ਯੂ, ਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਗਾ ਸ਼ੁੱਡ। ਪਲੇ ਵੈਲ ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲੂਜ਼ योर स्पोर्ट। ਲੈਸਟ इज़ फॉलोड बाय शुड। ठीक है, की याद रखना है कि ਲੈਸਟ किन्ना फॉलो करता है, शुड दे नाल। इट इज़ नैगेटिव, डू नॉट यूज़ अनदर नैगेटिव विद इट, हैंस ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट चॉइस। ठीक है, हुण देखो कहंदा ਲੈਸਟ जो है ऑलरेडी नैगेटिव सेंस दे विच हुंदा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ। ठीक है, ਮਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮਾਈਟ ਰੇਨ ਟੂਡੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕੁੱਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆ ਗਏ। ਲੈਸਟ, ਮਾਈਟ, ਕੁੱਡ, ਨੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਆਵੇਗਾ। ਪਲੇ ਵੈਲ ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ। ओके, नेक्स्ट है select the most appropriate word to fill in the blank. John was shocked to see his wife's dash outburst. Industrious, historic, historical, histrionic. जॉन की देख के शौक हो गया, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਬਰਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀਓਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ गलत हो गए। उस तो बाद जोड़ा है हिस्ट्रीओनिक, एक्सेसली थैट्रिकल और ड्रामेटिक इन करैक्टर और स्टाइल। मतलब ये ना एक तरह का, जे तुसीं इहनूं पढ़ोगे, एक तरह का परसनैलिटी डिसऑर्डर टाइप है। मतलब होरां दे सामने अपने आप नूं इदां दा दिखाना कि सारे मेरे वल देखण, इदां दी कोशिश करनी कि सारे तुहाडे तो अट्रैक्ट होण। ठीक है, मतलब जॉन शौक रह गया जदों ओहदी वाइफ ने कुछ इदां एक्ट किया, हिस्ट्रीओनिक टाइप ऑफ एक्टिंग की उन्हें कि सारे ਉਹਦੇ ਵੱਲ अटेंशन देन, ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखण। एक्सेसली थैट्रेटिकल और ड्रामेटिक इन करैक्टर और स्टाइल, मतलब कुछ इस तरह का करैक्टर या स्टाइल रखना जो बहुत ड्रामेटिक लगे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हिस्ट्रीओनिक। हिस्टोरिक तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, जो हिस्ट्री ਨਾਲ रिलेटेड है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री ਨਾਲ रिलेटेड। इंडस्ट्रीअस, डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इंडस्ट्रीअस। ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ याद रखना हिस्ट्रीओनिक। ओके, नेक्स्ट है एंटोनियम दसो। राउट वर्ड दसिया है, राउट का एंटोनियम उल्टा की होगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाकी शब्द दस ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। कैनिंग, कैनिंग का मतलब है किसी ਨੂੰ पनिशमेंट देनी। ठीक है, सज़ा देनी। डिबेकल, असफलता हो जानी, किसी नूं असफलता मिलनी किसी चीज़ दे विच। रीट्रीट, टू मूव बैकवर्ड इन ऑर्डर टू लीव बैटल, लड़ाई हो रही आ, तुसीं पिछे नूं मुड़ जांदे आ, बैक वाल मुड़ जांदे आ। ठीक है, डिबेकल का मैं की दस्सिया, असफलता, मान लो कोई लड़ाई हो रही सी, तुहानूं असफलता मिली। पनिशमेंट, कोई लड़ाई हुई, तुहानूं पनिशमेंट मिल गई। रीट्रीट, लड़ाई हो रही सी, तुसीं पिछे मुड़ गए। ठीक है, तीनों एक तरह के हो गए। तो एंटोनियम आपां लभना है। विक्ट्री की हुंदी है, तीनों तो उल्ट विक्ट्री की है, जित हो जानी। ठीक है, तो राउट की है, अ डिसीजिव डिफीट। ठीक है, डिफीट की हुंदी है, हार, हार हो जानी। ये है हार, ये है जित। ठीक है, इसका उल्टा की हो गया राउट दा, विक्ट्री। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। rebellious or opposing the authority, rebellious or opposing the authority, authority ਨੂੰ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, मतलब जो भी ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਨਸਰਜੈਂਟ, ਇੰਟਰਾਸਿਗਨੈਂਟ, ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ, ਇਨਯੂਡੋ। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसर्जेंट। अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वेडिंग फोर्स, अ रिबेल और रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी जो असीं हिस्टरी दे विच पढ़दे हां, रिवोल्यूशन करन वाले, ठीक है जी। तो इधर दा पर्सन जो फाइट कर रहा होवे गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने कहोगे इंसर्जेंट। ऑप्शन ए अपोजिंग द अथॉरिटी नूं अपोज कर रहा की है इंसर्जेंट, ठीक है जी। बाकी जोड़े पॉइंट्स ने तुसीं ना स्क्रीनशॉट लै सकते हो। ओके जो नैक्सट है सिलैक्ट द वर्ड विच विद द करैक्ट स्पैलिंग। एमिशन, एमिशन मतलब एमिट होना, कुछ गैसिज वगैरह जो एमिट होंदियां ने इहनूं एमिशन भी कहा जाता है। चारों ही एमिशन ने पर स्पैलिंग दे मिसटेक ने। राइट स्पैलिंग की है, सी इज़ करैक्टली स्पैल्ड, EMISSIONS, एमिशंस। पहला EMISSIONS, एमिशंस। एम सिंगल है, एस डबल है, ठीक है जी, एमिशंस। ओके नैक्सट है ईडियम दिता होया है, इहदा मीनिंग की है, डू वंडर, डू वंडर्स। वंडर की हुंदा है, वंडरफुल, बहुत ज़्यादा वंडरफुल होना, उहदे नाल ही रिलेटेड वर्ड है वंडर्स, डू वंडर्स। बी एक्सट्रीमली लेजी, लेजी तो नहीं हो सकता, वंडरफुल है तो वो लेजी हुंदा, सुस्त, हार्मफुल भी नहीं हो सकता। बी एक्सट्रीमली रसिस्टिव, रसिस्टिव होना लेकिन इफेक्टिव हो सकता है जेकर और वंडरफुल है, ठीक है। बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ऑप्शन डी। टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट और बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्पेशली अनएक्सपैक्टेडली, ठीक है। मतलब एक्सीलेंट जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करना, डू वंडर का की मतलब है, बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। चलो ब्रैकेट के भी जो पार्ट दिता है उन्होंने इंप्रूव करना है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउनस ऑफ अवर पार्टी सिस्टम द फाउंडेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर पार्लीमेंट रिमेन फर्म एंड अनचैलेंज्ड। कहते जिन्ने भी उतार चढ़ाव रहे उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो जोड़ा पार्लीमेंट है वो दृढ़ रहा तो अनचैलेंज्ड रहा, ठीक है। हुण क्या है, डिस्पाइट ऑफ ऑल अप्स एंड द, डिस्पाइट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउनस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है ऑल द अप्स एंड डाउनस ये सही है, लेकिन डिस्पाइट ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि ऑफ जो है वो नहीं लगता। डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन जे होवे इनस्पाइट, इनस्पाइट ਦੇ ਨਾਲ ऑफ लगता, इनस्पाइट ऑफ दिस, पर डिस्पाइट ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ नहीं होना किते ऑफ लगता होवे। डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउनस, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउनस, सी जो है राइट है, ये कला अप एंड डाउनस दिता है, अप्स ते डाउनस एस पिछे लगेगा, लेकिन डिस्पाइट दे नाल ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउनस, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट डजंट टेक ऑफ विद इट, डिस्पाइट दे नाल ऑफ नहीं लगता, बाकी ऑल द अप्स एंड डाउनस करैक्ट है, ठीक है। वर्ड दसो, फिल इन दी ब्लैंक करो। वार डैश इंडिपेंडेंट थॉट एंड स्पीच, गवर्नमेंट ऑफन इनवोक पैट्रियोटिज्म टू इनफोर्स कन्फर्मिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफन इनवोक पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म की ਹੁੰਦਾ देश भगती। सरकार की करती है वार के टाइम ते इनवोक करना या प्रवोक करना, लोगों के विच पैट्रियोटिज्म की भावना नूं वधाया जाता है, ठीक है। तो की हुंदा है, किस चीज़ नूं वधाया जाता है, सोचण दी ते स्पीच नूं इंडिपेंडेंट किया जाता है, ठीक है। तो इधर है इनफ्यूज स्टर स्टेक, स्टेक हुंदा किसी तो कुछ लेना, स्टर की हुंदा, स्टर है मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली, स्लाइटली मूव करना, कॉज टू मूव स्लाइटली।
ਤੇ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡਲੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਨਫਿਊਜ਼, ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਵੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸਨ ਹੂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਸਨ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮੀਅਨ, ਮਾਰਟੀਨੈਂਟ, ਸਪਾਰਟਨ ਜਾਂ ਟਰੂਐਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਾਰਟੀਨੈਂਟ। ਵਨ ਵਰਡ ਫॉर ਮੈਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਟੀਨੈਂਟ, ਮਾਰਟੀਨੈਟ, ਮਾਰਟੀਨੈਟ, ਮਾਰਟੀਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।